Now, again, good morning, students. We are coming here for NCERT exercise 3.3 trigonometric functions. Remaining questions from 11 to 21 and up to last or up to end. Okay. हमने 1 से 10 तक सॉल्व करने के बाद बताया था कि कुछ फॉर्मूले सीडी फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हमने सॉल्व नहीं किया, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम इक्वेशंस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इट इज गिवन, यू नो दैट sin a plus b that is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. This is equation number 1. Second, sin a minus b, this is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. This is equation number 2. First time add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. We will get sin a plus b plus sin a minus b, and this two ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. We get 2 sin a into cos b. Now consider, let a plus b is equal to c and a minus b is equal to d. When we add, we get 2a is equal to c plus d, then a is equal to c plus d by 2. Similarly, a plus b is equal to c and a minus b is equal to d. If we subtract, we get 2b is equal to c minus d, then b is equal to c minus d by 2. So ये हमें हमेशा यूज करना है चारों इक्वेशन में. a is equal to c plus d by 2 and b is equal to c minus d by 2. ठीक है. अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे. दैट इज sin a plus b is equal to c and a minus b is equal to sin b. Then we get 2 sin and a is equal to c plus d by 2 into cos c minus d by 2. This is first relation. ये आपका पहला रिलेशन मिला. ठीक है. नाउ पहले में हमने दोनों को ऐड किया. नाउ सब्ट्रैक्ट equation 2 from 1. When we subtract equation 2 from 1, we get sin a plus b minus sin a minus b. Then what we will get? ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. मीन्स 2 cos a into sin b. Again put the value a plus b and a minus b, then sin a plus b is equal to c minus sin, इसकी वैल्यू हो गई d, and that is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. यहाँ पे दो वैल्यूज मुझे मिली. ठीक है. ये मेरा सेकंड रिलेशन हुआ. दिस इज सेकंड रिलेशन. अगर हम इसको चाहें तो किसी जगह पे लिख सकते हैं. देखो ये दोनों फॉर्मूले थे, यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये दोनों रिलेशन लिखते हैं. साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, एंड अगेन sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ठीक है. अब इन चीजों के बाद ये दो रिलेशंस मुझे मिले. इन दोनों का यूज तो हमें हमेशा यूज होगा. ठीक है. दिस इज फर्स्ट रिलेशन.
दिस इज सेकेंड रिलेशन। अब देखो हमें ये भी पता है cos a plus b, this is equal to cos a into cos b plus minus sin a into sin b, ठीक है। और एक रिलेशन होता है cos, अगेन इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, cos a minus b that is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b, ठीक है। इसको ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट add equation 1 and 2, we will get cos a plus b plus cos a minus b, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 cos a into cos b, now put the values of a and b, so we get cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Then third relation, cos c cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. This is third. Next, last relation, it is given cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b, and cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. If we subtract this, so cancel, this is cos a plus b minus cos a minus b minus 2 sin a into sin b, ठीक है, minus 2 sin a into sin b। और अगर फिर इसमें हम a और b की वैल्यू रखेंगे, then cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Then we get cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. They are four relations, and on the basis of these four relations we have to solve some more questions, और कुछ फॉर्मूले जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका भी यूज किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट cos 3 pi by 4 plus x, cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x, and that is equal to, प्रूव करना है मुझे, माइनस √2 sin x, √2 sin x, यही प्रूव करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कर रहे हो? हाँ, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, cos c minus cos d, cos c minus d ये फॉर्मूला है, तो इस पे हम लोग यूज करेंगे LHS, 2 sin, यहाँ पे माइनस का 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x by 2 into sin 3 pi by 4
प्लस एक्स माइनस 3 पाई/4 और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 2। ये सॉल्यूशन करना है मुझे। दैट इज इक्वल टू -2। अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज साइन 3 पाई ये 2 हो गया और 2 2 कैंसिल, साइन 3 पाई/4 इंटू ये कैंसिल हो गया, दिस इज साइन 2x/2, दिस इज x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 साइन 3 पाई/4 अगर हम ये करते हैं, देखिए पाई माइनस पाई/4 दैट इज इक्वल टू 3 पाई/4, सो पाई माइनस पाई/4 and this is sin x. You know that sin pi minus pi/4, it means this is second quadrant and we know that in the second quadrant the value of sin is positive, so your 2 sin pi/4 into sin x, and we know that sin pi/4 that is equal to -2 into 1/√2 into sin x, and so we solve it। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं -2 1/√2 sin x and this is equal to √2 sin x proved। यहाँ तक ये नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ तक ही लिखना होगा, ये भी नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें इसको लिख लो। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो क्लीन करें इसको। अब इन फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब हमें अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर मैंने दिया आपको कि साइन स्क्वायर 6x, क्वेश्चन इज गिवन साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x दैट इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, साइन 2x इंटू साइन 10x। कुछ याद आ रहा है? कुछ फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। ये फॉर्मूले अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ साइन, ठीक है, हमने अगर बोला है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखते थे? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते थे। और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b, ठीक है, फिर माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये अब इन दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिलता था साइन स्क्वायर a, ठीक है, कॉस स्क्वायर b प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे लिखते थे माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b का फॉर्मूला होता था। अब हम इसमें क्या लिखते थे? दिस इज साइन स्क्वायर a और फॉर कॉस स्क्वायर b यू कैन राइट हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर b
माइनस यहाँ पे लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे लिखते थे माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देन वी गेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों कैंसिल हो जाता था और यहाँ पे मिल जाता साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे है तो माइनस है, सॉरी, तो दिस इज माइनस। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो एक बार देख लो। साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये मुझे प्रूफ करना है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी पे अगर हम यूज करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x LHS है। देन दिस इज साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x and then we will get sin 10x into sin 2x। देखिए अगर सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद होता तो सिर्फ ये 2 लाइन का क्वेश्चन है एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट इसी पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको क्लीन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? साइन 4x इंटू साइन 8x, यही ना प्रूफ करना है। हाँ ठीक है। अब इस तरह का फॉर्मूला तो मुझे तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ठीक है, कुछ नहीं आ रहा तो फिर आइडेंटिटी यूज करते हैं। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x एंड राइट हियर 1 माइनस sin square 6x. This is LHS. So you can write here 1 minus sin square 2x minus 1 plus sin square 6x. Then we get sin square 6x minus sin square 2x. And then again अब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया, इसका हम यूज कर सकते हैं। Then sin 6x plus 2x into sin 6x minus 2x and then we will get sin 8x into sin 4x and proved। है तो आसान क्वेश्चन, बोलिए। चलिए इसको जल्दी जल्दी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्लिक करो।
साइन साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस यही तो है 2 साइन 4x प्लस साइन 6x साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x 4 cos स्क्वायर x into sin 4x cos 4x this is sin 4x okay sin 4x अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से हम जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती जाएगी। अब इसमें सोचना है कि किसके साथ, अब इसके साथ तो हमारा कोई रिलेशन हो नहीं सकता, हम इन दोनों के साथ कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं साइन 6x इंटू साइन 2x LHS स्टार्ट किया हमने और प्लस 2 साइन 4x लिख सकते हैं। हमने बड़े वाले को पहले लिख दिया क्योंकि c प्लस डी है और c माइनस डी है, ऐसे माइनस होता फिर अलग बात है कि आ जाता, बट हम ऐसे करेंगे 2 साइन c प्लस डी 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2। अगर ये कर लेते पहले 2 रहता तो ये नेगेटिव आता, तो कॉस माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तब भी वही बात आती, बट थोड़ा सा हमने साइन 4x अब यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 8x हो गया बाई 2, तो साइन 4x इंटू यहाँ पे है कॉस 2x, ठीक है, यहाँ 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। नाउ यू कैन टेक 2 sin 4x as a common, we get cos 2x plus 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 sin 4x। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये cos 2x है, हमको क्या लाना है cos x लाना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड प्लस 1 1 1 cancel, this is equal to 2 to 4 sin 4x into cos square x and this is 4 cos square x into sin 4x, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। अब इसके बाद के एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे, ठीक है।